Paper 5, Planning, November 2017, Variant 52. Verdigris is a green pigment that contains both copper to carbonate and copper to hydroxide in varying amounts. Both copper compounds react with dilute hydrochloric acid. You are to plan an experiment to determine the percentage of copper to carbonate in a sample of verdigris. Your method should involve the reaction of verdigris with an excess of dilute hydrochloric acid. You are provided with the following materials: 0.5 grams of verdigris, 10 mole per dm cube hydrochloric acid, commonly available lab reagents and equipment. ओके तो जो दो रिएक्शंस उन्होंने दिए हुए हैं दोनों में कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड का रेशियो ऑफ रिएक्शन विद HCl इज 1:2। दोनों में कॉपर क्लोराइड प्रोड्यूस हो रहा है, दोनों में वाटर प्रोड्यूस हो रहे हैं और कार्बोनेट के साथ जो है वो CO2 भी प्रोड्यूस हो रहा है। You may assume that any other material present in verdigris is unaffected by heating and is not acidic or basic. Explain why a titration would not be a suitable method to determine the percentage of copper to carbonate in a sample of verdigris. इन्होंने जो रिएक्शन दिखाए थे उसमें दोनों कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो एसिड से रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम सिर्फ कॉपर कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट नहीं करवा सकते यूजिंग अ टाइट्रेशन। तो इसका जवाब होगा इट इज बिकॉज both CuCO3 and CuOH twice react with HCl and form CuCl2. Therefore, CuCO3 cannot be individually made to react with HCl. The 10 mole per dm cube HCl is corrosive and too concentrated for use in the experiment. Describe how you would accurately prepare 250 cm cube of 0.5 mole per dm cube hydrochloric acid from 10 mole per dm cube HCl provided. Include details of any apparatus including their capacities in cm cube you would use. तो इसमें सबसे पहले हमें जो है वो वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है जिस वॉल्यूम में हमें उतने मोल्स मिल जाएंगे जितने मोल्स जो है हमें चाहिए 250 cm क्यूब बनाने। तो इसके लिए पहले कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। उस कैलकुलेशन को शो करने की जरूरत नहीं है आपको अपने आंसर में, लेकिन आप अलग से इस कैलकुलेशन परफॉर्म करके ही वैल्यू निकालोगे। वो कैलकुलेशन क्या है? वो ये कैलकुलेशन है। आपके पास 0.5 मोल पर डीएम क्यूब है तो 0.5 इन 1000, हाउ मेनी इन 250, तो ये हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 0.5। इसका आंसर आता है 0.125 मोल्स। तो हमें चाहिए 0.125 मोल्स, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास जो है वो 10 मोल पर टीम का सोल्यूशन है। तो 10 मोल्स इन 1000 सीएम क्यूब, 0.125 मोल जो है वो कितने सीएम क्यूब में होंगे? तो ये हो जाएगा 0.125 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000, या 10 और 1000, 1000 डिवाइडेड बाय 10 इज 100, तो 0.125 इंटू 100 मेक्स इट 12.50 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम है जो हमें चाहिए 10 मोल पर डीएम क्यूब आपके एसिड का, जिसको हम 250 सीएम क्यूब तक डाइल्यूट करेंगे और डाइल्यूट करने के बाद हम लोग जो है अपना सोल्यूशन जो है वो यूज करेंगे एक्सपेरिमेंट में। तो ये कैलकुलेशन थी जो हमें करने की जरूरत थी बिफोर वी स्टार्ट राइटिंग द आंसर। अब ये हो गई है। नेक्स्ट लेट्स राइट डाउन द आंसर। ट्रांसफर 12.50 cm cube of 10 mole per dm cube HCl from a burette
into a 250 cm cube volumetric flask. Make up the contents of the flask up to the 250 cm cube mark with distilled water. Stopper the flask and invert several times to achieve uniform dilution. तो ये हो गया dilution का procedure. After we calculated what volume of 10 mole per dm cube HCl is needed to make 250 cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl solution. Identify a dependent variable that you could measure to determine the percentage of copper to carbonate in verdigris. Your answer should be based on a difference that you can identify between the reactions of copper to carbonate and copper to hydroxide with excess dilute hydrochloric acid. अच्छा, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड है. कॉपर कार्बोनेट के साथ अगर रिएक्शन होगा तो CO2 गैस प्रोड्यूस होगी. तो एक ये डिफरेंस है. और जो दूसरी चीज जो मेजर कर सकते हैं वो सॉलिड कितना ज्यादा यूज अप हो गया, मास ऑफ सॉलिड लॉस. ठीक है ना. बेहतर है कि आप जो है वो गैस कलेक्ट करें क्योंकि CO2 गैस जो है वो रिएक्शन विद कॉपर कार्बोनेट में प्रोड्यूस हो रही है लेकिन वो आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड में प्रोड्यूस नहीं हो रही. तो इसका आंसर होगा इन द रिएक्शन विद CuCO3 the volume of gas liberated can be measured. The volume of CO2 gas liberated can be measured. Draw a diagram to show how you would set up the apparatus and chemicals to measure the dependent variable identified in 3. यानी volume of CO2 gas should be collected. इसके एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करने के लिए हम लोग एक कॉनिकल फ्लास्क के अंदर जो है एक रबर बंग लगाएंगे जिसमें दो होल्स होंगे. वन फॉर डिलीवरी ट्यूब कनेक्टिंग इट टू अ गैस सिलेंडर, अदर फॉर द टैप ऑफ द ब्यूरेट जिससे HCl ऐड करेंगे. तो ये डायग्राम हम लोग यहाँ बनाते हैं. अब तो ये हमारा डायग्राम बन गया. अब इसको लेबल करते हैं. ये जो ब्यूरेट है इसके अंदर है आपका HCl एक्वस. ये आपका सॉलिड कॉपर कार्बोनेट है CuCO3 सॉलिड. ये आपका जो है रबर बंग लगा हुआ है आपके कॉनिकल फ्लास्क में. ये आपकी डिलीवरी ट्यूब हो गई. ये आपकी रबर ट्यूबिंग हो गई जॉइंट से गैस लीक करने के लिए प्रिवेंट करने. और ये आपकी हो गई ग्रेजुएटेड गैस सिरिंज फॉर द कलेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. और ये आपका डायग्राम हो गया फॉर द एक्सपेरिमेंट दैट इज टू बी परफॉर्म. Using the axis below, sketch a graph to show
how the dependent variable you identified in 3 would change during your experiment. Extend the graph beyond the point at which the reaction is complete. Label both the axes. Okay, अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो वॉल्यूम ऑफ CO2 गैस इवॉल्व इन cm क्यूब और यहाँ पे नीचे होगा टाइम इन सेकेंड। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो इंक्रीज करेगा, फिर एकदम से प्लेटो रीजन रीच कर जाएगा बिकॉज इसमें फर्दर जो है वो ऐड नहीं होगी CO2 बिकॉज ऑल द CO2 दैट वाज सपोज टू बी प्रोड्यूस हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड। ये मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ CO2 है जो कि कलेक्ट हो सकती है इन द गिवन सैंपल ऑफ कॉपर कार्बोनेट। A student carries out this experiment once. Describe how this one experiment should be carried out to ensure that the results are as accurate as possible. अच्छा, आपको गैस लीकेज प्रिवेंशन करना है आपने। तो जो हम लोगों ने रबर ट्यूब और रबर ट्यूबिंग और रबर बंग वगैरह जो लगाए हैं, दैट विल प्रिवेंट लॉस ऑफ गैस फ्रॉम द apparatus। और वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड का भी ख्याल रखना है कि इनिशियल वॉल्यूम को आप नोट करके रखोगे of the gas syringe before you start the experiment, and you will note the final volume of the gas syringe once the plunger stops moving out even slowly। ठीक है, मूव आउट नहीं करना चाहिए कंप्लीटली, जब रुक जाएगा तब नोट करोगे तो आपकी रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी एक्यूरेट होंगी। तो इसको कैसे लिखेंगे? यूज रबर बंग एंड रबर ट्यूबिंग to ensure no loss of gas from joints in the apparatus। Initial and final volumes of gas syringe need to be noted accurately as well। Initial and final volume of gas syringe need to be accurately noted as well। A student suspected that their 0.5 gram sample of verdigris only contained copper carbonate. Calculate the minimum volume in cm cube of 0.5 mole per dm cube HCl that would be needed for the complete reaction of the sample if the student was correct। तो इसके अंदर हमारे पास जो रिएक्शन होता है कॉपर कार्बोनेट का HCl के साथ, उसमें मोलर रेशियो ऑफ कॉपर कार्बोनेट टू HCl इज 1:2। तो इसके हिसाब से आपके मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट जो हैं, मोल्स ऑफ CuCO3 वो होंगे 0.5 divided by 123.5 the MR as given। This will give us 4.05 into 10 to the power of -3 moles। So according to the molar ratio, moles of HCl हो जाएंगे 2 into 4.05 into 10 to the power of -3। ये बन जाएगा 8.10 into 10 to the power of -3 moles। ये है मोल्स ऑफ HCl। अच्छा, HCl की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बताई हुई है 0.5 मोल पर डीएम क्यूब। तो 0.5 मोल्स इन 1000 सेंटीमीटर क्यूब, हमें कितने मोल चाहिए? 8.10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3। ये वाले मोल्स कितने में चाहिए होंगे वो कैलकुलेट करते हैं। तो 8.10 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 1000, इसका आंसर आ रहा है
16.20 centimeter cube. So volume of 0.5 mole per dm cube HCl that is needed is 16.20 centimeter cube. The following information gives some of the hazard associated with the chemicals used in the procedure. Copper 2 carbonate hydroxide. The solid is classified as health hazard and is harmful if swallowed. Dispose of by reacting no more than 60 grams in 1 dm cube of warm 1 mole per dm cube ethanoic acid before pouring down a foul water drain. Hydrochloric acid. The solutions equal to or more than concentrated than 6.5 mole per dm cube are classified as corrosive. Solutions equal to or more than concentration 2.7 but less than 6.5 are classified as moderate hazards and are irritant. तो ये hazards इन्होंने display कर दिए इस box में. Describe one relevant precaution other than eye protection and a lab coat that should be taken to keep the risk associated with the chemicals used to a minimum and explain your answer. अगर आप HCl की बात कर रहे हो तो आप लिखोगे wear gloves as 10 mole per dm cube HCl is corrosive. और अगर आप बात कर रहे हो कॉपर कार्बोनेट की तो आप लिखोगे wear gloves and face mask. Wear gloves and face mask as CuCO3 is harmful if swallowed. So any one relevant precaution based on which chemical you are referring to. Azurite is a blue copper containing mineral. The copper compound in azurite has the formula Cu thrice, CO3 twice, OH twice. This copper compound reacts with sulfuric acid according to the reaction shown. 1:3 का ratio है. Copper sulfate, carbon dioxide or water producer है. A student performed a series of titrations on 1.5 gram samples of solid azurite using 0.4 mole per dm sulfuric acid. It can be assumed that any other material present in azurite does not react with sulfuric acid. The titration data is given in the table. Final reading, initial reading and titers. So 25.50 rough है, 23.90 और 24.40 इसकी दो accurate titrations हैं according to this table. The indicator for the titration was bromophenol blue. The student concluded that 24.15 cm3 of 0.4 mole per dm sulfuric acid completely neutralized 1.5 grams of azurite. Using the student's value of 24.15 cm3, calculate the percentage by mass of copper carbonate hydroxide in the sample of azurite. Write your answers to three significant figures. तो अब हम लोग इससे सबसे पहले मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हुए हम लोग निकालेंगे मोल्स ऑफ ये कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड इन एजुराइड. तो मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे concentration of 0.4 mole per dm cube and the volume of 24.15 cm cube जो कि टाइटर वैल्यू है. तो हम लोग यहाँ पे ये कैलकुलेशन करते हैं. 0.4 moles in 1000 cm cube. How many moles in 24.15 cm cube? So 24.15 divided by 1000 multiplied by 0.4. इसका आंसर आता है 9.66 10 power minus 3 moles. 9.66 10 power minus 3 moles. अच्छा, अब हमारे पास मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गए. सल्फ्यूरिक एसिड इज टू कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड का रेशियो 3:1 है. अगर मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गए हैं तो मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड डिवाइड बाय 3 करके आएंगे. तो वो निकालते हैं अब. मोल्स ऑफ Cu3 twice OH twice is equal to 9.66 into 10 to the power of minus 3
divided by 3, which will give us 3.22 into 10 to the power of -3 moles. ये हमारे पास मोल्स ऑफ कॉपर कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड आ गए। अब हमें निकालना है इसका मास, तो मास के लिए मोल्स इंटू एमआर करना होगा। तो मास इज इक्वल टू मोल्स इंटू एमआर। मोल्स इज 3.22 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 मल्टीप्लाइड बाय एमआर जो दिया हुआ है 344.5। इससे आंसर आता है 1.11 ग्राम। ये आपका मास है इन द गिवन सैंपल। आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज, और जो आपका टोटल मास ऑफ सैंपल था वो 1.5 ग्राम था। तो परसेंटेज बाय मास निकालने के लिए 1.11 डिवाइडेड बाय 1.50 इंटू 100 करेंगे। इसका आंसर आएगा 74%। और आप यहाँ पे लिख दोगे अपना फाइनल आंसर 74.0%। Identify two possible problems with the student's titration and suggest improvements to it. जो टाइटर वैल्यूज थी उनमें कोई भी दो वैल्यू जो कॉन्कॉर्डेंट नहीं थी ना, उनमें 0.1 का डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो ये एरर है। तो क्या लिखेंगे प्रॉब्लम 1, नो टू टाइटर नो टू टाइटर्स वर concordant or had a difference of 0.10 cm cube only between them। अब इसका जो है इम्प्रूवमेंट क्या होगा? रिपीट द टाइट्रेशन until concordant results or results with a difference of 0.10 cm cube are obtained। दूसरा क्या है? इसके अंदर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कॉपर क्लोराइड है, कॉपर सल्फेट है रादर, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है। तो कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर है। आप जो इंडिकेटर यूज कर रहे हो उसका नाम है ब्रोमोफिनॉल ब्लू। तो इंडिकेटर का कलर जो है वो जो प्रोडक्ट है उसके कलर से मास्क हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। उसका सोल्यूशन ये होगा कि कोई ऐसा इंडिकेटर यूज करो जो कि आपका ब्लू कलर से बहुत डिफरेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, उसका कलर ऑरेंज होता है, ठीक है। तो आपको एक डिफरेंट इंडिकेटर यूज करोगे तो फिर भी आप कलर चेंज नोट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक ऐसा इंडिकेटर यूज करते हो जिसका कलर ब्लू होगा किसी न किसी स्टेज पे, तो वो कॉपर सल्फेट के कलर के साथ मिक्स हो जाएगा और इंडिकेटर का कलर चेंज होते हुए दिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो प्रॉब्लम 2 हम लोग क्या लिखेंगे? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कलर्ड so it will make it difficult to see the color of the indicator। इसकी इंप्रूवमेंट क्या लिखेंगे? यूज एन इंडिकेटर with a much different color। जैसे कि मैंने बोला एग्जाम्पल मिथाइल ऑरेंज in place of bromophenol blue।